Hello, officers. Welcome to UPSC Revise. Welcome to another session of the Hindu Revision. आई होप आपने आज का न्यूज़पेपर खुद से पढ़ा होगा, नहीं वरना उसकी कोई ना कोई रिलेटेड वीडियो देखी होगी. एंड नाउ इट्स टाइम कि आप मेरे साथ उसको एक बार सारे टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे. मूविंग ऑन टू टॉपिक नंबर 1, which is related to GS paper 2, that is international relations. We have some international groupings. It is a grouping of major emerging economies. ठीक है, क्या क्या आता है? B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C से चाइना एंड S से साउथ अफ्रीका, और सब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ब्रिस्क. इंडिया वाज द फाउंडिंग मेंबर जब ये ग्रुपिंग फॉर्म हुई थी, एंड द prime objective of this grouping is to promote peace, security and development in these regions. So what are the key institutions related to this grouping? Number one is the New Development Bank. This New Development Bank is responsible for funding infrastructure and development projects. ठीक है, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर इन दी शंघाई. So this is what you have to remember for prelims. Now the second key institution of this grouping is the Contingent Reserve Arrangement, that is the CRA. ठीक है, अब ये क्या करता है? This CRA, as you can see, it is a reserve arrangement. So it will support its member countries in a financial stability, to ensure the financial stability, and also in the situation of BOP crisis. ठीक है, BOP crisis मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के अंदर ये जो CRA है ये हेल्प करेगा मेंबर कंट्री को. ठीक है, व्हाट इज ब्रिस्क? इट इज अ grouping of major economies, major emerging economies. India was the founding member. Objective is to promote peace, security and development. There are two key institutions. One is the NDB, that is the New Development Bank, headquartered in Shanghai, important for prelims. And second one is the Contingent Reserve Arrangement. It is a reserve arrangement. Whenever the member country need financial assistance, so this will provide it, and in case of the BOP crisis. Now कुछ और दो पॉइंट्स हैं जो प्रीलिम्स के लिए आपको याद रखने हैं. आर्टिकल के अंदर कुछ खास नहीं है. आर्टिकल के अंदर इनकी ब्राज़ील के अंदर इस साल की जो मीट है बस इतना ही लिखा हुआ है, और कुछ मेजर जो अंडरटेकिंग्स है वो मेंशन की गई है. हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है कि इंडोनेशिया वाज द न्यू मेंबर, और ये 2025 के इस साल के प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी है. ठीक है, दिस वाज आस्क्ड इन this year 2025 prelims as well. So now this grouping is basically focusing on the BRISC plus, that is they are inviting more countries, for example Iran, Argentina, Egypt, UAE, Ethiopia and Saudi Arabia as well. ठीक है, तो ये ब्रिस्क से क्या बन जाएगा? क्योंकि इंडोनेशिया ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, सो दे आर नाउ प्रमोटिंग द ब्रिस्क प्लस ग्रुपिंग. ठीक है, एंड देयर objective or aim is to become a global south platform. ठीक है, a global south platform to counter the western dominance in the region. So this is the article related to GS paper 2 that you have to know. Now moving on to another article which is related to GS paper 3. So it is indigenous heavy water reactor that have get license in Gujarat. ठीक है, गुजरात के अंदर जो हमारा इंडिजीनियसली मेड हैवी वाटर रिएक्टर है उसको क्या मिला है? उसको लाइसेंस मिला है ऑपरेट होने का, ऑपरेशन में जाने के लिए. ठीक है, सो AERB ग्रांटेड NPCIL लाइसेंस टू ऑपरेट. ठीक है, व्हाट इज AERB? AERB क्या है? AERB इज द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ इंडिया. ठीक है, AERB इज द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ इंडिया एंड इट हैज ग्रांटेड द license to operate a 700 megawatt of indigenously developed heavy water reactor. ठीक है, NPCIL क्या है? NPCIL is Nuclear Power Corporation of India Limited. ठीक है, Nuclear Power Corporation of India Limited को लाइसेंस मिला है to operate their indigenously made 700 megawatt प्रेशर हैवी वाटर रिएक्टर. ठीक है, दिस इज प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर. इट इज इंडिजिनियसली डेवलप्ड. ठीक है, यहाँ पे भी मेंशन है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर. अभी क्या चीज़ है ये और क्या डिफरेंस है इसका नॉर्मल रिएक्टर से? ठीक है, सबसे पहली बात तो इट यूजेस हैवी वाटर, एज जो नाम के अंदर ये हैवी वाटर रिएक्टर, ये H2O की जगह क्या यूज़ करता है? इट यूज D2O. ठीक है ना, ये हाइड्रोजन का ही अपना जो
हैवियर फॉर्म है, जो एटॉमिक नंबर में हम उसको हाइड्रोजन का जो 1 रहता है, इसका ये हैवी फॉर्म है, दैट इज डी। 2 हाइड्रोजन एटम मिलके ये बनता है डिटोरियम, D2O, ठीक है। इट इज़ दी हैवी वाटर। सो इट विल यूज एज अ मॉडरेटर एज वेल एज अ कूलेंट, ठीक है ना, प्लस विद यूरेनियम एज अ फ्यूल टू बेसिकली पावर दिस न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। अभी वर्किंग समझते हैं, इसकी वर्किंग किस तरीके से काम करेगा। सो वी हैव यूरेनियम, द एनरिच्ड यूरेनियम, ठीक है, दैट विल अंडरगो द फिजन रिएक्शन, ठीक है ना। एंड फिजन रिएक्शन क्या जनरेट करेगा, इट विल प्रोड्यूस हीट, ठीक है ना। एंड व्हेन यूरेनियम के साथ साथ वी विल ऐड D2O, दैट इज द हैवी वाटर, और इट विल एक्ट एज अ मॉडरेटर की तरह। कैसे एक्ट करेगा, इट विल बेसिकली मॉडरेट द फास्ट न्यूट्रॉन्स टू सस्टेन द चेन रिएक्शन, ठीक है। जो फास्ट न्यूट्रॉन्स हैं, बिकॉज आपको पता है कि फिजन के लिए कोई भी फिजन करा रहा है, तो ये एक न्यूट्रॉन है और ये एक न्यूट्रॉन है, तो दोनों न्यूट्रॉन को आपस में कोलाइड कराना पड़ता है, जिससे जो क्या है फिजन रिएक्शन टेक प्लेस हो सके, एक चेन रिएक्शन बने, ठीक है। सो दिस D2O विल हेल्प इन मॉडरेट दिस कोलिजन। ये जो न्यूट्रॉन के बीच में कोलिजन होगी, इसको मॉडरेट करने के लिए ये जो है D2O, जो हार्ड वाटर है, ये हैवी वाटर है, जो ये काम में आएगा। एंड इट विल सस्टेन द चेन रिएक्शन। नाउ द हीट जो प्रोड्यूस होगी फिजन रिएक्शन करके, दिस हीट विल बी ट्रांसफर इनटू द सेकेंडरी सिस्टम और अ सेकेंडरी चैम्बर, और यहाँ पे इट विल जनरेट स्टीम, ठीक है। हीट से क्या जनरेट होगी, सेकेंडरी चैम्बर में जाएगा, हीट से क्या जनरेट होगी, स्टीम जनरेट होगी। अब स्ट्रीम क्या करेगी, स्ट्रीम विल ड्राइव द टर्बाइंस को घुमाएगी, एंड द इलेक्ट्रिसिटी विल बी जनरेटेड। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ अ PHWR, दैट इज प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। क्या खास बात है इसके अंदर, एनरिच्ड यूरेनियम के साथ वी आर यूजिंग DTO, दैट इज द हैवियर फॉर्म ऑफ द हाइड्रोजन। H2O वाटर का हैवी फॉर्म है, दैट इज द D2O हैवी वाटर, and we are using it as a moderator as well as coolant. That is something that you need to remember. Now moving on to topic number 3, which is again related to GS paper 3 agriculture, ठीक है। दिस इज प्योरली मेंस ओरिएंटेड टॉपिक, 1-2 सवाल प्रीलिम्स के अंदर बन सकते हैं, बट मोस्टली इट इज ऑफ मेंस ओरिएंटेड टॉपिक, विच इज रिलेटेड टू प्लांट ट्रीटी, ठीक है। अब देखते हैं प्लांट ट्रीटी है क्या। इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, दैट इज नोन एज द प्लांट ट्रीटी, ठीक है। रिवाइज इट विद मी वन मोर टाइम। इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, दैट इज नोन एज प्लांट ट्रीटी, ठीक है। इट इज adopted in 2001 and it came into force in 2004. So it is by Food and Agriculture Organization of the United Nations. So this treaty is basically by the United Nations FAO. What is FAO? Food and Agriculture Organization की ये treaty है, ठीक है। And India is also a signatory partner of this plant treaty, ठीक है। So what are the objective of this treaty? The first objective is to ensure conservation and sustainable use of plant genetic resources, because plant genetic resources is of pivotal importance, ठीक है, and the conservation of the genetic resources as well as its sustainable use, that is the objective of this plant treaty, ठीक है। And the second objective is to promote fair and equitable sharing of the benefits after using this. So suppose कोई country इस genetic resources को use कर रहा है and they have came out with some results, ठीक है, और some new discoveries. So it is binding, according to this treaty, it is binding to promote the fair and equitable sharing of that knowledge, ठीक है। And the third is to contribute to global food security as well as nutrition security as well, because this is the point जो आपको याद रखना है कि previously we are focusing on food security because we have lack of food resources, ठीक है, everywhere around the world, but अभी food resources की कमी नहीं है, we are able to maintain food security. Now the question is of nutrition security. food तो मिल जाएगा, but जो फूड हमें खाने को मिल रहा है क्या वो न्यूट्रिशियस है या नहीं, दैट इज द क्वेश्चन जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, विच यू हैव टू पे अटेंशन टू, ठीक है। नाउ व्हाट आर सम की फीचर्स ऑफ दिस ट्रीटी। नंबर 1, इट हैज़ अ मल्टीलैटरल सिस्टम, दैट इज द MLS सिस्टम। अभी सिस्टम करता क्या है, इट बेसिकली फैसिलिटेट्स एक्सेस टू ग्लोबल
पूल ऑफ इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, मेज। जो हमारे बेसिक क्रॉप्स होते हैं, राइस हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया, ठीक है। अब इसकी जो फैसिलिटेशन है, अब किसी कंट्री को ज़्यादा, बिकॉज जनरली क्या है, अफ्रीकन कंट्रीज़ को जो बेसिक स्टेपल मील है उसकी जो है वो ज़रूरत ज़्यादा रहती है, ठीक है। दे आर लेस फोकसिंग ऑन न्यूट्रिशन, दे आर मोर फोकसिंग ऑफ गेटिंग दिस फूड सिक्योरिटी। सो द MLS system, the multilateral system is facilitate this food crops, ठीक है, that will ensure benefit sharing from their commercial use, ठीक है। Now, अब benefit sharing कैसे होगी? If someone commercializes a plant variety using the resources they got from the MLS, ठीक है, then they must share these benefits like monetary और technology transfer, ताकि अगर एक कंट्री को बेनिफिट हुआ है, if one country is able to extract some new technology or some new discovery from this multilateral system or from the genetic resources of a plant, then that particular knowledge should be shared और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होना चाहिए ताकि हर एक कंट्री को, स्पेशली जो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको बेनिफिट हो सके। थर्ड इज द फार्मर्स राइट, ठीक है। दिस ट्रीटी प्रोटेक्ट द ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है, द इंडिविजुअल नॉलेज, द ट्रेडिशनल नॉलेज, द रीजनल नॉलेज, ठीक है। दिस ट्रीटी विल प्रोटेक्ट ऑल दिस नॉलेज एंड अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी द फार्मर्स हैव द राइट टू सेव, द राइट टू यूज एंड द राइट टू एक्सचेंज एंड सेल देयर फार्म सेव्ड सीड्स, ठीक है। दे हैव द राइट टू सेव, दे हैव द राइट टू यूज, दे हैव द राइट टू एक्सचेंज सीड्स, ठीक है ना। एंड द लास्ट वन इज द पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग, ठीक है। कुछ भी डिसीजन होना है, दे हैव द राइट, फार्मर्स के पास राइट है, दे कैन मेक द एसोसिएशन, दे कैन चूज द लीडर, दे कैन चूज द स्पोक्स पर्सन एंड दैट पर्सन कैन रिप्रेजेंट द इश्यूज एंड द डिसीजंस that they have to represent. Now, so this treaty basically covers 64 major food crops which are essential for food security, ठीक है। That is something that you have to remember. Now, अब आर्टिकल में क्या है? आर्टिकल ये बता रहा है कि जो प्लांट ट्रीटी है, इनकी मीटिंग होने वाली है, इनकी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, दैट विल टेक प्लेस बिटवीन 7 to 11 जुलाई ऑफ दिस ईयर, ठीक है। कहाँ पे होगी? वो पेरू में होगी। और the claims are there because various policy makers, scientists, activists, they are basically claiming that कि plant treaty को amend किया जा रहा है, ठीक है ना। स्पेशली दी Annex 1 of this treaty को amend किया जा रहा है और all these activists are arguing, the farmer, the scientists are arguing that the proposals are not only detrimental to the interest of the Indian farmers but it also consistent with the plant treaty's preamble as well. तो जो भी अमेंडमेंट होने वाली है, उनका कंसर्न ये है कि दैट विल गोइंग अगेंस्ट द प्रियम्बल ऑफ द प्लांट ट्रीटी, दैट इज बेसिकली वायलेटिंग द आर्टिकल 10 एंड आर्टिकल 11. This is Article 10 and Article 11. They are violating these two articles. And also the seed sovereignty is also being violated. तो ये उनका कहना, ये उनका आर्ग्यूमेंट है. लेट्स सी, कॉन्फ्रेंस के बाद पता चलेगा अमेंडमेंट होता है या नहीं होता है. दैट इज़ अ ऑन गोइंग थिंग. और जैसे न्यूज़ में आएगा, यू कैन कम टू UPSC रिवाइज टू कवर दिस टॉपिक अगेन, ठीक है. अब सीड सोवरेनिटी के बारे में बात करें. सीड सोवरेनिटी क्या है? सीड सोवरेनिटी बेसिकली रेफर्स टू द राइट ऑफ द फार्मर्स to use, to exchange, to breed, to save seeds free from corporate and government control. It is a right of the farmer to use their seed, to exchange their seed, basically to nurture their seed, to breed their seed, and also to store or save their seed free from the corporate and government control. ठीक है, that is basically control over seed, full control over seed. That is the seed sovereignty. और उनको ये seed sovereignty कहाँ से मिलती है? सबको कहाँ से मिलती है? ये प्लांट ट्रीटी से सीड सोवरेनिटी मिलती है. ये जो फार्मर्स के राइट हैं, दिस इज द राइट, द सेकंड राइट, दिस इज व्हाट, दिस सीड सोवरेनिटी. और इनका ये क्लेम है कि ये जो अमेंडमेंट होगा, जो भी टेक प्लेस होने वाला है, इससे इनकी सीड सोवरेनिटी पे भी खतरा है. दैट इज समथिंग दे आर एलिजिंग. ठीक है. सो प्लांट ट्रीटी क्या है? ये it is a plant treaty, it is an international treaty based on plant genetic resources. ठीक है. It is done by Food and Agriculture Organization of the United Nations, and India is a signatory of plant treaty. The basic that you have to remember. Now moving on to topic number 4, that is related to GS paper 2, NCM, that is National Commission for Minorities. ठीक है. क्या है ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज? इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर्स. ठीक है.
और किस एक्ट से ये बनी है? बाई नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट ऑफ 1992. These are the 3 key points that you have to remember for prelims for NCM, that is a National Commission for Minorities. अभी आर्टिकल, अब ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में ये टॉपिक इसलिए है बिकॉज जो NCM का चेयरमैन है और जो 5 मेंबर्स हैं, दिसंबर 2024 में दे हैव completed their term. And now there is a vacancy of the chairman as well as with the 5 members. पूरी उनकी वैकेंसी खाली है and there is no appointment till date. ठीक है, जुलाई 2025 तक भी कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई है. तो वो लोगों का बोलना है, वो एक्टिविस्ट का, पॉलिसी मेकर्स का ये बोलना है कि अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हो रही. ऑपोजिशन का ये बेसिकली बोलना है कि अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हो रही है. उसके रिगार्डिंग ये जो आर्टिकल है ये न्यूज़ में था. सो यू हैव टू रिमेंबर द NCM. कौन सी बॉडी है ये, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, कौन से एक्ट से ये बॉडी बनी है, दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. इट इज़ अ 5 मेंबर बॉडी. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट देयर शुड बी 1 मेंबर फ्रॉम ईच माइनॉरिटीज. ठीक है, दिस इज ऑल्सो दैट यू हैव टू रिमेंबर द डिफरेंट माइनॉरिटीज इन इंडिया, दैट इज मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड जैन्स. These are the 6 minorities group present in India, and from these 6 minority groups, it is according to the Act of NCM 1992 that there should be 1 member from each minority to be a part of this body. ठीक है, now Article 29 and Article 30 of the Indian Constitution talks about the minorities' right. This is also that you have to remember about minorities, National Commission for Minorities. Now moving on to another topic. ठीक है, ये टॉपिक मैंने कैटेगराइज नहीं किया है बिकॉज दिस इज बेसिकली टॉपिक रिलेटेड टू GS पेपर 1. ठीक है, GS पेपर 1 ज्योग्राफी से रिलेटेड ये टॉपिक है. बट मैं चाहूँगा कि यू गो, आप आज का पेपर खोलें और इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप खुद से पढ़ें बिकॉज दिस इज सच ए ब्यूटिफुल टॉपिक. और जिस तरीके से ये लिखा गया है, ठीक है ना, द एवरी लाइन, द एवरी सेंटेंस एंड द कनेक्शन द राइटर हैज़ मेड, दैट इज़ जो आपको बहुत सारा इसमें सीखने को मिलेगा बिकॉज आपको ऐसे लिखना है. ठीक है, सो यू कैन कनेक्ट दिस आर्टिकल टू GS पेपर 1, यू कैन कनेक्ट दिस आर्टिकल टू GS पेपर 3 विच इज रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट. यू कैन इवन कनेक्ट दिस आर्टिकल विद essays. ठीक है, सो आई विल टेल यू क्या है इस आर्टिकल में. आप रिवाइज करोगे अभी मेरे साथ, बट अगर आपने ये रीड किया है देन आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल. और अगर आपने नहीं किया है, अगेन पॉज दिस वीडियो, इसको एक बार पढ़ो खुद से. अभी इस वीडियो को यहीं रोक के इसको पढ़ लो. अगर आपके पास न्यूज़पेपर एक्सेस नहीं है तो इसको खुद से पढ़ो, तब आपको समझ में आएगा कि भाई न्यूज़पेपर रीडिंग खुद से जो अंडरस्टैंडिंग होती है. और मेरे साथ, क्योंकि मैं रिवीजन सेशन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, ठीक है, रैदर देन न्यू हिंदू एनालिसिस जहाँ पे मैं आपको सब चीज़ें बताऊँ. इट इज़ ऑलवेज बेटर आप खुद से उसको पढ़ें. जो आपके गैप्स छूट गए हैं, कम विद मी, रात को सोने से पहले वॉच दिस वीडियो एंड रिवाइज इट विद मी. ठीक है, दैट्स इट समथिंग दैट वी हैव टू डू. नाउ अभी आर्टिकल कहता क्या है? द ओशन हैज़ ऑलवेज स्पोकन इन वेव्स, इन करेंट्स, इन साइलेंट रिदम्स बीनीथ इट्स वास्ट सरफेस. ठीक है, तो आर्टिकल बेसिकली ये कह रहा है कि दिस ओशन दिस इज अ लिविंग सिस्टम. ठीक है, एंड दिस सिस्टम हमेशा ये बात करता है. ठीक है, बट we are not able to communicate with it efficiently. But now with the intervention of technology, with the intervention of data interpretation and the intervention of AI, artificial intelligence, now we are in a position to actually communicate with this vast living system that is our oceans. For centuries, sailors, scientists and philosophers have tried to understand its patterns, often relying on the observational and instinct. ठीक है, but now we, with the aid of technology, relied upon data which are coming from satellites, the ocean sensors and the remote platforms. That is something mentioned in this article. ठीक है, so it also talked about the eddies. तो eddies क्या होता है? Suppose this is a current and it is flowing in this direction. This is a current. This is the ocean current. अब ये जो current pass हो रहा है, so this is a current, ocean current. यहाँ से there will be a separate branch जो इस तरीके से विल हैव अ सर्कुलर शेप. इस तरीके से दिस सेपरेट ब्रांच विच इज बेसिकली सेपरेटिंग फ्रॉम द ओशन, द मेन ओशन करंट, इसको हम बोलते हैं एडीज. दीज आर नोन एज एडीज. सो द ओशन इज नॉट अ स्टिल बॉडी, जैसे मैंने आपको बताया, इट्स अ लिविंग ब्रीदिंग सिस्टम
in a constant motion. Rising and sinking water masses and temperature gradient that shift with the sensors and climate. These movement influence everything from regional weather and patterns to global climate system. तो इसके बारे में यही बात कर रहा है कि ये जो currents है हमारे, ठीक है, there are two types of current. एक होता है warm current, एक होता है cold current. द वार्म करंट जिस भी रीजन में फ्लो करता है वहाँ के वो वेदर को इन्फ्लुएंस करता है, उनके वेदर की टेम्परेचर को बढ़ा देता है. कोल्ड करंट ऑन दी अदर हैंड विल डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दैट रीजन, ऑफ दैट कोस्टल रीजन, ऑफ दैट पर्टिकुलर कोस्ट. दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज करंट्स, और इसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है. अलॉन्ग विद दिस वी हैव वन मोर थिंग, दैट इज द मीजोस्केल एडीज. ठीक है, व्हाट आर मीजोस्केल एडीज? एडीज मैंने आपको बताया, दीज आर द एडीज. नाउ इमेजिन दो करंट पास होते हैं, ठीक है, एंड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ दिस टू करंट वी हैव वन लार्ज एडी. ठीक है, एक लार्ज एडी यहाँ पे फॉर्म होता है. लेट्स से इन दो करंट के बीच में ये एडी फॉर्म हुआ, इन दो करंट के बीच में ये एडी फॉर्म हुआ है. सो दिस इज द मीजोस्केल एडी. इट इज अ लार्ज रोटेटिंग बॉडीज ऑफ वाटर दैट कैन स्पैन हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स. 100 ऑफ किलोमीटर के तक ये स्पैन हो सकता है. इसको बोलते हैं मीजोस्केल एडीज. एंड दिस परसिस्ट फॉर वीक्स और इवन मंथ्स. जो मैंने आपको एडीज बताई, द एडीज जो स्मॉल एडीज होती हैं ये कुछ आवर्स के लिए या कुछ मिनट्स के लिए परसिस्ट होती हैं. बट दीज एडीज जो दो करंट्स के बीच में फॉर्म होती हैं, सो दीज एडीज दीज कैन परसिस्ट फॉर अ वीक और इवन फॉर अ मंथ एज वेल. सो दीज आर दी मीजोस्केल एडीज जो आपको यहाँ से याद रखना है. ठीक है, दीज आर लाइक द अंडर वाटर स्टॉर्म. ठीक है, द आर्टिकल सेज दीज आर लाइक द अंडर वाटर स्टॉर्म्स. ठीक है, which gives pattern, which redistribute the heat, nutrients and salinity across the vast distance. So these underwater currents, these underwater storms have the capability to redistribute heat, to redistribute nutrients and to redistribute salinity across the vast distance. So the temperature, the salinity, the chlorophyll levels, the wave height, etc. What are these? These are the signals in which the ocean is communicating with us. So from that information, they learn, they can predict, we can even adapt. The ocean is no longer silent to us. It speaks to us in the form of data, and the computers are the interpreter of that data. ठीक है, so basically what we need to do now, what is the way forward? We understand that ठीक है, पहले we have only observation and instinct on the basis of which we are getting our information, but now the ocean is speaking to us. वो हमसे बात कर रहा है in the form of temperature, the salinity, the levels, the chlorophyll levels, the corals. ठीक है, they change colors. ठीक है, we have different species जो temperature और salinity के change होने से they change their adaptation, they change their colors. सो दैट इज़ द सिग्नल्स जिसके वजह जो हमको हेल्प हो सकती है, लाइक जिससे ओशंस बात करने की कोशिश कर रहा है. बट एंड नाउ वी हैव विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI ड्रिवन एनालिसिस, नाउ वी हैव better systems, we have the better capabilities to understand these oceans. So we need to invest in infrastructure that make ocean data more open, more accessible and more usable. We need next generation researchers so to basically bridge computer code with climate models. So just imagine if we can create a computer code on the basis of the climate model, and we can use AI driven analysis codes and charts to basically forecast storm surges. क्या पढ़ा हमने अभी तक? So using data from satellites, ocean sensors and remote platforms, computers are helping us decode the complex language of this largest living system in the earth, on the earth. ठीक है, the advanced AI modeling and transforming how we perceive and interact with this marine environment. ठीक है, the health of our ocean is deeply intertwined with the health of our planet. As climate change accelerates, extreme weather events are becoming frequent. In this scenario, the ability to predict ocean behavior is necessity. So if we are in a position to predict the ocean's behavior, then we can better understand our climate, we can better understand our weather. और क्या पता कि हम भाई climate change का जो हम solution ढूंढ रहे हैं वो हमको deep inside the ocean यहाँ से हमको मिले. So that is something the writer is speculating, and that is something that we can gain from this article. Now moving on to article number 2. Why are Bihar's electoral rolls are being revised? ठीक है, अब मैं आपको लेमैन टर्म में मोटा मोटा बताता हूँ कि भाई
बात क्या है, ठीक है। आई हैव टेकन दिस आर्टिकल टुडे, बट ये आर्टिकल पिछले एक हफ्ते से न्यूज़ में था। आई हैव टेकन दिस टुडे बिकॉज एक अच्छा खासा कोई एक एक होलिस्टिक वे के अंदर मुझे कुछ मिला नहीं था डेटा जो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ, जो बता पाऊँ, एंड टुडे दिस आर्टिकल डज दैट जॉब। सो सबसे पहले भाई हो क्या रहा है बिहार में, सबको पता है भाई बिहार के अंदर, जिसको नहीं पता, बिहार के अंदर होने वाले हैं असेंबली इलेक्शन, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस जो बिहार के अंदर होने वाले हैं, ठीक है। मुद्दा क्या है, अभी SIR कंडक्ट किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। SIR क्या है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ठीक है। व्हाट इज SIR, इट इज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। भी होता क्या है, सबको पता है इलेक्टोरल रोल्स के बारे में, ठीक है। इलेक्टोरल रोल्स आर बेसिकली द लिस्ट विद द इलेक्शन कमीशन, जहाँ पे सब हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी 1, कॉन्स्टिट्यूएंसी 2 एंड 3, यहाँ के सबकी जो वोटर्स हैं, जो इलेक्टर्स हैं, उनका जो है नाम लिखा रहता है। इस लिस्ट को हम बोलते हैं इलेक्टोरल रोल, ठीक है। और ये हर एक इलेक्शन के पहले ही रेडी की जाती है। अब इशू क्या आया, अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन, जो बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन एंड बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन, दिस लिस्ट जो है इसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे नाम ऐड हुए हैं, बहुत सारे नाम हटाए गए हैं इस लिस्ट से। तो अब इस डिस्क्रिपेंसी को सॉल्व करने के लिए देयर इज़ अ provision in the constitution which allows election commission to basically to do a revision of this list. लास्ट टाइम रिवीजन हुई थी 2003 के अंदर, और उसके बाद अभी हो रही है 2025 के अंदर, ठीक है। अब ये बिहार से शुरू हो रही है, और इलेक्शन कमीशन ने बोला है वी विल स्टार्ट फ्रॉम बिहार एंड वी विल रिवाइज द इलेक्टोरल रोल ऑफ एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ एवरी स्टेट, ठीक है। ये सबका करने को इलेक्शन कमीशन ने बोला है। तो दिस इज समथिंग जो मुद्दा है पूरा, अब हम जानते हैं अब हम इसका पूरा इनसाइट जानते हैं। सबसे पहले SIR पता चल गया, वाटर SIR, दीज आर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। बेसिकली जो इलेक्टोरल रोल है उसको फिर से रिवाइज करना, जानना कि भाई हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कितने वोटर्स हैं, बेसिकली कितने इलेक्टर्स हैं हमारे, ठीक है। इलेक्टर क्या होता है, इलेक्टर वही है, इलेक्टर बेसिकली ए पर्सन हु इज अबव द एज ऑफ 18 एंड हु हैव अ राइट टू बेसिकली इलेक्ट इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, बोथ इन द पार्लियामेंट एज वेल एज इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज समथिंग इलेक्टर। तो ये आपको दिख रहे हैं, दिस ऑल दीज आर इलेक्टर्स बिकॉज दे आर अबव द एज ऑफ 18 नाउ। So what is an electoral roll? So according to Article 324 of the Constitution provides that the superintendence, direction and the control of the preparation of electoral rolls for the conduct of election to Parliament and state legislature shall vest with the Election Commission. So according to Article 324 of the Indian Constitution, it is the duty and this power has been vested with the Election Commission to maintain these electoral rolls. That is something Article 324 is all about. Now, the Article 326 provides that every citizen who is not less than 18 years of age shall be entitled to register as an voter. अब आर्टिकल 326 क्या बोलता है, 18 साल से ऊपर जो भी लोग हैं हमारे, जो भी सिटीज़न हैं इंडिया का, दे आर एलिजिबल टू रजिस्टर देमसेल्फ एज अ वोटर और अ इलेक्टर इन देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो दो आर्टिकल हैं, याद रखने हैं। आर्टिकल 324 विच गिव्स पावर टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू प्रिपेयर दिस इलेक्टोरल रोल, एंड इन आर्टिकल 326 एनी पर्सन of Indian origin who has Indian citizenship above the age of 18 year is eligible to be a voter or an elector. Now, कुछ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के कुछ सेक्शंस है जो इंपॉर्टेंट है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। द इलेक्टोरल रोल्स आर प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन एज पर द प्रोविजन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950। अब इसके अकॉर्डिंग ही इलेक्शन कमीशन क्या है, अपना इलेक्टोरल रोल बनाता है। So section 16 of the Representation of the People Act disqualifies a non-citizen from being enrolled in the electoral roll, ठीक है। अब आर्टिकल 16 क्या करता है, बेसिकली जो कि नॉन सिटीज़न है उसको डिस्क्वालीफाई करता है कि भाई आर्टिकल 16 ये बोलता है कि नॉन सिटीज़न इलेक्टोरल रोल का पार्ट नहीं हो सकता। दैट इज मेंशन इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन नंबर 16। द सेक्शन 19 बेसिकली टॉक्स अबाउट द रिक्वायर्स दैट द पर्सन इज नॉट लेस देन 18 ईयर्स, जो 18 साल की जो एज ब्रैकेट है, दैट पर्टिकुलर statement is mentioned in Article 19. That particular clause is mentioned in Article 19 of the RPA. Now, Section 20 of the RP
एक्ट प्रोवाइड्स द मीनिंग ऑफ द टर्म ऑर्डिनरी रेजिडेंट. ठीक है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है क्या? What is an ordinary resident? Section 20 defines the term ordinary resident. Ordinary resident का मतलब ये नहीं होता कि आपका घर है वहाँ पे. If you have a home there, if you have a land there, यहाँ पे अपने अपना घर बनाया है और आप बोलोगे कि भाई मैं वहाँ का ordinary resident हूँ, नहीं. This is not the definition. The definition is कि you have an intention to reside there. You are residing there for a very long time and you have the intention to reside there for many years more. ठीक है, दैट इज समथिंग द रेजिडेंट हम जिसको बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वर्किंग इन बैंगलोर एंड यू हैव अ हाउस इन बैंगलोर, ठीक है, एंड यू आर रिसाइडिंग इन बैंगलोर फॉर मोर देन 10+ years, दैट मीन्स यू आर रिसाइडिंग फॉर मैनी ईयर्स एंड यू हैव एन इंटेंशन टू रिसाइड हेयर फॉर 20+ years बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ योर जॉब. तो अगर आपका बैक इन टाउन घर आपका, फॉर एग्जाम्पल इट्स इन बिहार, और आपका वहाँ पे घर है, that is abandoned, you are not living there, so you will not be a part of a ordinary resident in the Bihar constituency. That is something, it is mentioned in section 20 of the Representation of People Act. Now coming to section number 21. Section 21 of the Representation of People Act deals with the preparation and revision of electoral rolls. It authorized the Election Commission to carry out a special revision of electoral roll at any time for reasons to be recorded. So section 21 gives this power to Election Commission of India to revise this electoral roll any number of time and at any time. मतलब कभी भी और कितनी बार भी इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से जब उसको ठीक लगे वो इसको रिवाइज कर सकता है. As I have said, the last revision took place in the year 2003 and now it is being held in 2025. ठीक है, that is something. Few sections of the RPA and Article 302, 324 and 326 that you have to remember. अब ये होगा कैसे? So in the present SIR, जो लास्ट टाइम जो SIR हुआ था, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो लास्ट टाइम हुआ था, इसके अंदर क्या हुआ था? हाउस टू हाउस विजिट हुआ था. हाउस टू हाउस इलेक्शन कमीशन ने जाके हर एक इंसान से उसके डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करके चेक करके जो इलेक्टोरल रोल है उसको रिवाइज किया था. But this time what they are doing, they are saying that every elector will have to submit an enumeration form to their respective booth level officers. ठीक है, BLOs को आके अभी आपको जो है फॉर्म वगैरह वो सबमिट करना पड़ेगा. लास्ट टाइम ये लोग खुद गए थे डोर टू डोर, इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन किया था. नाउ दे आर टेलिंग द BLOs के पास आके, दैट इज बूथ लेवल ऑफिसर्स के पास आके आपको अपना एन्यूमरेशन फॉर्म, एक फॉर्म है, उसको आके फिल करके आपको भरना है. ठीक है, अब इसके अंदर एक क्लॉज है, जिसने 2003 के अंदर अपना करा लिया था, रिवाइज हो गया था, और उसका नाम है 2003 वाले इलेक्टोरल रोल के हिसाब से जिसका नाम है, दे डोंट हैव टू बेसिकली प्रोवाइड एनी डॉक्यूमेंट which basically shows the proof of their residence. उनको सिर्फ 2003 वाला उनको जो रिसिप्ट है, जो स्लिप मिली होगी, सिर्फ उनको वो शो करनी है and their task is done. But the rest of the people, what they have to do, they have to prove their citizenship, they have to prove their residentship, they have to provide their parents document as well. So these are the 3 documents that they have to provide to the BLO, that is block level officers. ठीक है, so there are few criticisms and there are few challenges which is also mentioned in this article. So basically the critic says it is a humongous task, ठीक है, which involves submission of various types of forms, and we are basically trying to achieve this for 8 crore voters. So that will cause again major challenges. ठीक है, there is a potential error of inclusion and exclusion which can undertook in this task. So this is the criticism that the writer says. ठीक है, but the positive point is what some people are saying कि भाई अभी हमारे पास comparing to 2003, in 2003 this task has been completed in 31 days, but now with the aid of technology, with the aid of bureaucracy, ठीक है, with the aid of various like around 4 to 5 lakhs volunteers, ठीक है, who are working as a booth level agents, now we are in a position to complete this task more efficiently and more effectively as well. So this is a positive point that you can write in your exam.
ठीक है. नाउ द केस विद द आधार. सी आधार, अगेन एंड अगेन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उन्होंने बताया कि आधार इज़ अ नो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप. ठीक है, आधार आपका सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है. और दिस इज समथिंग दैट यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर. योर आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ योर सिटीजनशिप. इट इज़ ओनली अ प्रूफ ऑफ योर बेसिक आइडेंटिटी. ठीक है, एंड आइडेंटिटी का मतलब ये नहीं होता कि जो आप सिटीजनशिप हो, आप रेजिडेंट हो, ये बता रहा है. दैट इज समथिंग बेसिकली शोइंग आप कौन हो, आपकी एक आइडेंटिटी, आपकी एक पहचान बताता है. सो एक फ़र्क है एक सिटीजनशिप में, एक सिटीज़न में, और एक नॉर्मल एक आईडी में. ठीक है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो आधार हैज़ बीन एक्सक्लूडेड एज अ वैलिड डॉक्यूमेंट बिकॉज एक्सपेक्टेड था. बिकॉज ईसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उन्होंने लास्ट टाइम इलेक्शंस में भी 2024 के इलेक्शन में भी ये बात रिपीट की थी कि आधार कार्ड इज़ नॉट अ प्रूफ ऑफ योर रेजिडेंट और एज अ प्रूफ ऑफ योर सिटीजनशिप. इट इज़ ओनली अ प्रूफ ऑफ योर आइडेंटिटी. ठीक है, ये आपको याद रखना है. बेसिकली द जिस्ट ऑफ इट, क्या हमने अभी पढ़ा. द आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट द सुपरिंटेंडेंट द डायरेक्शन एंड द कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स for the conduct of election to the parliament or state legislative assembly shall vest with the election commission of India. And because of rapid urbanization and migration which took place in this 20 long years, this has increased the possibility of duplicacy in the entire electoral roll. To basically to come out from this duplicacy, we are doing SIR, that is special intensive revision. So an enumeration form to their so all the elector will have to submit an enumeration form to their respective booth level officers. That you have to understand. ठीक है. Now section 16, which basically tells which disqualify a non-citizen for being enrolled as a voter. Section 19 says anyone who is more than the age of 18 can eligible. And section 20 says basically define the resident, who are the ordinary resident. The definition has been provided by section 20 of the RPA, and section 21 basically gives power of revision to the election commission. ठीक है, authorize the EC to do it any number of time and at any time. ठीक है, so this is something that you have to learn from this article. मैं फिर से इसको बोलूँगा, आप खुद से इसको पढ़िए एक बार और फिर आके मेरे साथ उसको आप रिवाइज कीजिए. तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर होगी, आपके न्यूरॉन्स कनेक्शन आपके काफ़ी अच्छे से बिल्डअप होंगे और आपको याद अच्छे से रहेगा और आप अच्छे से एक्टिव रिकॉल. जिसने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है टाइम टेबल वाली, प्लीज़ डू वॉच इट. वहाँ पे मैंने एक्टिव रिकॉलिंग की बात की है. दिस इज़ समथिंग विच इज़ द साइंस बिहाइंड रिकॉलिंग इन एग्जामिनेशन. ठीक है, थैंक यू so much for watching. I'll see you in the next video.